Okay, Ji, welcome to part two of session number 5. And we are going to be reviewing another assignment, जिसके ऊपर मैं आपको feedback दूंगी, and you will be able to see how a simple English or a simply written assignment is adapted into scientific language, and how a manuscript is prepared so that it is written scientifically. And it gets closer to publication. Obviously, the more scientifically it is written, the easier it is to finalize the manuscript, finalize the draft into a publishable paper. So I'm going to review that with you. Let me just share screen. Let me just first open. Mm, hmm, okay. यहाँ नेट इशू था, अभी ठीक हुआ है, सॉरी. वेल, ओके. आई होप दैट इन फ्यूचर देन जिसको नेट इशू है वो सेशन के लिए किसी ऐसी जगह पे चला जाए जहां पे उसको नेट इशू ना हो. मेरी ये रिक्वेस्ट है. बाकी मुझे पाकिस्तान के हालात पता हैं. आई एम रियली सॉरी. आई यू हैव ऑल माय सिंपैथी. बट आई थिंक आपको खुद फायदा होगा अगर आप ये 2 घंटे 1.5 घंटा जो है ये इस टेंशन में ना गुजारें कि मेरे पास नेट इशू है और अब मैं क्या करूंगा और अब मैं कैसे कनेक्ट होऊंगा और मैं मेरा काम खराब हो रहा है. सो मेरा मशवरा ये है कि आप इस टाइम के लिए किसी लाइब्रेरी या किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पे नेट इशू ना हो. ओके. um okay, G, let me just pull up the article for you. Okay, so here is an assignment that I just received. Research question is, what is the association of academic stress with sleeping difficulties in medical students? It is pretty specific. सिर्फ ये है कि medical students के साथ आप आगे उनकी location भी लिख दें. हो सकता है. It's not important really. Question पूरा है. Question में कोई कमी नहीं है. लेकिन अगर आप location भी लिख दें तो वो इसको बहुत specific बना देगा. Then ये है कि medical students. तो कौन से medical students? Which level? क्या वो मेडिकल स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के हैं, क्या वो फाइनल ईयर के हैं, जिनको आदत पड़ गई है सिर्फ 2 घंटे नींद पे चलने की? ये कौन से मेडिकल स्टूडेंट हैं? ओके. So your title is Research of Academic Stress with Sleeping Difficulties in Medical Students. Sleeping difficulty is an English term, so it is better to adapt it. आप यहाँ पे कौन सी sleeping difficulty? You can write insomnia, which is a medical term. It will make your title more scientific, more attractive. Okay. Determine the presence or absence of difficulty in going to sleep. So this is initiation of sleep among medical students of itna compared with very good. So now it has become a comparative study. So what is the association? आप नहीं देख रहे हैं. आप देख रहे हैं what is with medical students. So which level? आपके research question में ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. Just write a new research question for you. What is the or आप कंपेयर कर रहे हो बेसिकली. Is the difference between sleep pattern of first year medical students in comparison with fourth and final year? All right. So you're looking for a differential. You're looking to prove that there is a difference. किसी में ज्यादा है, किसी में कम है. आपने ये तो मान लिया है कि स्लीपिंग डिफिकल्टी तो है. पैटर्न ऑफ स्लीप जो है वो नॉर्मल नहीं है. स्लीप पैटर्न्स या स्लीप प्रॉब्लम्स आप उसको कह सकते हैं. And how are they different? Okay. Explore gender based correlation between. अब जेंडर बेस भी आपने इसमें डालना है और वो आपके टाइटल में भी नहीं है. टाइटल भी आपने दोबारा से बनाना है. ओके.
between first year in comparison for patterns of first year in comparison fourth and final year medical students based on gender of सो आप सिर्फ ईयर्स नहीं देख रहे हैं, आप उनके जेंडर वाइज भी डिफरेंशियल्स देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके मुताबिक आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स जो भी ये दीज आर नॉट स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स, देखें डिटरमिन द प्रेजेंस और एब्सेंस, एक तो ये बात है। ठीक है, कंपेयर्ड विद दिस, इसमें आपने जेंडर का जिक्र नहीं किया, हालांकि आपके ऑब्जेक्टिव्स में जेंडर भी है, आपके जो रिसर्च क्वेश्चन है उसमें जेंडर है। फिर एक्सप्लोर जेंडर बेस आपने दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा है, विच इज, चलिए आपने दो ऑब्जेक्टिव बना दिए, मैंने एक में लिख दिया है, दोनों ठीक है, आप दोनों तरह कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव कंपैरेटिव केस कंट्रोल स्टडीज, इट्स अ सिंपल डिस्क्रिप्टिव कंपैरेटिव स्टडी, केस कंट्रोल नहीं है। केस कंट्रोल ये कब होगी, जब आप ये कहें, जब आपकी एक हाइपोथेसिस हो कि मेडिकल एजुकेशन लोगों की नींद खराब करती है। अगर ये हाइपोथेसिस है तो फिर तो फर्स्ट ईयर में स्लीप प्रॉब्लम कम होनी चाहिए और फाइनल ईयर में ज्यादा होनी चाहिए। वो आपकी केस कंट्रोल स्टडी होगी। इस वक्त आप एक सिंपल डिस्क्रिप्टिव कंपैरिजन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर को भी देख रहे हैं, फाइनल ईयर को भी देख रहे हैं, फिर खवातीन को भी देख रहे हैं, मर्द हजरात को भी देख रहे हैं, और आप उनको कंपेयर कर रहे हैं। सो इट्स अ सिंपल डिस्क्रिप्टिव कंपैरेटिव स्टडी। ऑलराइट। Medical education is linked to rigorous standards and requirement that can lead to wide spectra of negative health effects, and we need a reference. ये बहुत बड़ा claim आपने किया है, it's a very big claim, और research में जहां पे भी क्लेम होता है, यू नीड ए रेफरेंस फॉर दैट। शायद आपने आगे कहीं ये रेफरेंस लिखा हुआ हो, लेकिन इस स्टेटमेंट के लिए भी आपने रेफरेंस देना है। Because of congested curricula, strict timetables, and financial difficulties, have to face an assortment of psychophysiological issues. Psychophysiological. ओके जी, सो ये नंबर वन है। ये एक और, अच्छा ये तो सिखों ने किया हुआ है। Excessive daytime sleepiness among Indian college students. Indian college students हैं ये, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं कि नहीं है, आई डोंट नो आपकी स्टडी में। बट एनी, क्योंकि देखिए आपने जो बात लिखी है ना, आपने मेडिकल एजुकेशन के बारे में लिखी है। सो अब ये जो मिस कौर हैं जो भी, यानी कि ये जो ग्रुप है, लेट मी जस्ट सर्च दिस स्टडी ऑन गूगल। लेट्स गो टू गूगल। ओके, यहाँ पे आ गए, स्टडी निकाल के देखते हैं। ये आ गया, ठीक है, स्टडी वहां पे खुल गई, पबमेड की स्टडी है, बहुत वेल साइटेड स्टडी, और फुल टेक्स्ट लिंक्स इसके यहाँ पे हैं। गुरजीत कौर और अमरजीत सिंह ने लिखी है ये, और इट्स नॉट अ फुल स्टडी, आई डोंट नो हाउ यू अमंग फर्स्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट, देखो ये कितनी अच्छी आपको मिल गई, ये देखो खादका और रोका ने जो लिखी है, इट्स अ फ्री पीएमसी आर्टिकल, यू कैन ओपन दिस स्टडी, and it's a free article, and it's about medical students, it's not about college students। ये देखो। आई डोंट नो आपने ये यूज की है कि नहीं अपने उसमें इंट्रोडक्शन में, बट आई जस्ट फाउंड इट फॉर यू, आई जस्ट कॉपी द लिंक, और ये मैं आपके उस पे कॉपी पेस्ट कर दूंगी। लेट मी जस्ट गो बैक। अच्छा, फिर कौर है जो मैंने आपको स्टडी दिखाई है, वो शायद इसमें नहीं है, ठीक है, उसका मैं आपको यहाँ पे लिंक लिख देती हूँ, आपका जब डॉक्यूमेंट वापस आएगा तो उसमें वो लिंक होगा। ये वो नेपाली स्टडी है जो मैंने आपको अभी बताई है, ऑन अंडरग्रेड मेडिकल स्टूडेंट्स। ठीक है। सो व्हाइल यू लुकिंग फॉर रेफरेंसेस यू कैन फाइंड सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स। ये मैं आपको वापस ग्रुप में भेजूंगी। बट एनीवे, सो यू आर सेइंग दैट मिस गुरजीत एंड मिस कौर हैव रिटन द स्टडी, और उनको स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स एट ये न्यूयॉर्क यूएसए।
showed the requirements for medical trainees endanger well-being and lead to burnout, which is very true. New York में anybody can burn out. So नंबर ये कौन सा रेफरेंस है आपका? रेफरेंस नंबर 2। ये भी और लोगों ने की हुई है। ये भी इन्होंने, ये न्यूयॉर्क में हुई भी है ये स्टडी। देखो 2000, आपने दोनों में एक ही स्टडी लिखी है, सो मे बी यू आर यूजिंग वन रेफरेंस मोर देन वंस। अगर ऐसी बात है ना और वो आगे पीछे आ रहे हैं तो फिर आप एक ही दफा वो रेफरेंस लिख दो, खैर है, 2 दफा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके। सो आपने न्यूयॉर्क की एक स्टडी कोट की है यहाँ पे, that the requirements for ये the lengthy duration of medical education, academic overload, lack of spare time stresses students mental health। आपने बच्चे 3 दफा एक ही बात की है, रेफरेंस नंबर 1 की भी वही बात है, नंबर 2 की भी वही, और 3 की भी वही बात है। देखो इंट्रोडक्शन में यू हैव ओनली मे बी 250 टू 300 वर्ड्स। आप बहुत ज्यादा उसमें रेपिटेशन ना करें, एक तो वो बोरिंग हो जाता है, दूसरा आपके पास और बातें करने का टाइम नहीं रहता। ठीक है, और बातें करने के लिए वर्ड्स नहीं रहते आपके पास। सो लेट्स सी रेफरेंस नंबर 3, आरबर्ग और ड्रेसलर, ये तो कोई जर्मन है, इन्होंने लिखा हुआ है ये The Interaction, Sleep and Academic Performance, Journal of Psychiatric Research। 2012 का पेपर है, ये पेपर बहुत पुराना है। कोशिश करो कि नए पेपर इस्तेमाल करो, ठीक है। मैंने इसीलिए कहा है 5 साल की लिमिट लगा दिया करो कि 5 साल से ज्यादा पुराना पेपर मैंने नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है। फिर आपने दोबारा से आरबर्ग को इस्तेमाल किया है, दोबारा वही है, 2012 का ही पेपर है, तो आपने 2 जगह पे इसको इस्तेमाल किया है। सो इट इज बेटर कि आप वो रेफरेंस एक ही दफा कोट करें, पूरी चीज लिख के उसके आगे वो रेफरेंस लिखते हैं। हाँ, ये हो गया आपका। 3 studies show that high level of study related stress amid the recognized causes and a concern about। अच्छा, इसके लिए मैं आपको फीडबैक में ये लिखूं कि आप ऐसा करो ना कि एक सेंटेंस आप लिखो, the psychological stressors faced by medical students। एक आप ये लिखो, ठीक है। मेरे कंप्यूटर में कोई मसला है, ये नंबरिंग नहीं करता। ओके। दूसरा, आप दूसरा पोर्शन या 1-2 सेंटेंसेस आप लिखो, दी इमोशनल स्ट्रेसर्स फेस्ड बाय मेडिकल स्टूडेंट्स, ठीक है। बिकॉज दैट इज एन एडल्ट एज, ठीक है। किसी के फैमिली होगी, किसी का कोई किसी का कोई अफेयर, रोमांटिक अफेयर चल रहा होगा, किसी के पेरेंट्स बूढ़े हो गए होंगे, किसी के बहन भाइयों में मसले होंगे, बहुत कुछ होता है ना। देन यू कैन राइट द फाइनेंशियल स्ट्रेसर। सी हाउ आपकी वो जो बात है, आप वो बात कर रहे हो जो आपने लिखी हुई है, लेकिन यू आर राइटिंग इट इन अ सिस्टमैटिक वे, ठीक है। बेस्ड मेडिकल students। And fourth, you will answer yourself. You will ask this question in your introduction. Is there a difference between different levels of undergrad medical education? Is there a difference between stress levels and psychological disturbances between। अच्छा, वो बिटवीन आपने वहीं पे लिख दिया, डिफरेंस बिटवीन या फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ अंडरग्रेड। अब इसके लिए आपको अलग अलग रेफरेंसेस चाहिए हैं। अब आपने इसको बहुत ज्यादा डिटेल बना दिया है, बहुत आपने कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया है, और जो भी आपका पेपर पढ़ रहा है उसको ये फील हो रहा है कि ये बंदा जो है, ये बंदी या बंदा, ये बिल्कुल इसने सब कुछ अच्छी तरह अपने टॉपिक के बारे में सोच लिया है। ये बिल्कुल क्लियर है कि मेडिकल एजुकेशन में हर किस्म के स्ट्रेसर्स होते हैं। फिर इसको ये भी पता है कि वो स्ट्रेसर्स जो हैं वो ईयर ऑफ एजुकेशन के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। और फाइनली जो आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स में एक बात लिखी हुई है, वो बिल्कुल यही है
बिल्कुल यही बात है, लेकिन उसमें एक और एंगल है, और वो एंगल वो क्या है, लिख देती हूँ। फॉर डिफरेंट genders of undergrads। ठीक है। अब आप जब इन क्वेश्चंस को आप आंसर करोगे ना अपने इंट्रोडक्शन में, और हर एक के लिए आपने अलग रेफरेंस ढूंढना है, तो ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन हो जाएगी। ठीक है। According to the literature, there's strong bidirectional relationship between stress and inadequacy of sleep। अब आपने ढेर सारे एकदम से रेफरेंसेस दे दिए हैं। एक आपने दिया है 2012 का रेफरेंस, ठीक है, प्री स्लीप कॉग्निटिव अराउजल ब्लाडी ब्ला टू कॉम्प्लिकेटेड। फिर आपने दिया है 2020, वेरी गुड, स्लीप मेडिसिन का ही रेफरेंस है ये, कि उसमें क्या होता है। फिर आपने 2018 का दिया है जेंडर डिफरेंसेस, वेरी गुड। रेफरेंसेस आपके बहुत अच्छे हैं, रेफरेंस ये वाले स्पेशली, ये रेफरेंसेस आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स को मीट करते हैं। लेकिन यू जस्ट नीड टू ऑर्गेनाइज देम इन अ सिस्टमैटिक वे, इन अ साइंटिफिक वे। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, उम्मीद है। अच्छा, इसमें क्या चीज मिसिंग है? अब मैंने पूरी इंट्रोडक्शन आपके सामने पढ़ दी। व्हाट इज मिसिंग? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर हेयर, नॉट द पर्सन हुज रिटन दिस, नॉट नेसेसरली एनीबडी कैन आंसर। इसमें क्या चीज मिसिंग है? व्हाट आर वी मिसिंग इन दिस वेरी गुड इंट्रोडक्शन? एम, वेरी गुड, थैंक यू हेरा। सो व्हाट वी आर मिसिंग इज, अभी तक जो मैंने सारी कहानी सुनाई है, मेरा मकसद क्या है, मैं क्यों आपको ये कहानी सुना रही हूँ? सो यू हैव टू से दैट देयर इज, such and such, or not a lot of research from Pakistan about effects or psychological effects of medical education on students। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैंने क्लेम तो कर दिया है कि स्टडीज नहीं है पाकिस्तान से, बट डू आई रियली नो कि स्टडीज हैं कि नहीं? सो लेट्स गो बैक टू गूगल। देयर आर 13 पार्टिसिपेंट्स हु जॉइंड नाउ। हिरा, इब्राहिम, मैमुना, मोहम्मद हमजा जॉइंड लेट। नहीं, मोहम्मद हमजा वाज हियर। एक और हमजा है जो मुझे यहाँ नहीं नजर आ रहा। यस, देयर इज अनदर हमजा हु इज नॉट हियर, so that Hamza is absent and another person is absent. Okay. And they will get remedial work. Okay, let me just go back to Google. Swatwala present. Yes, I know. Swatwala ko abhi review bhi kiya hai, so I know very well. And let's go back. Okay. Hmm. ये आ गया, कोई पाकिस्तान से चीज छपी हुई है, स्लीप क्वालिटी अमंग मेडिकल स्टूडेंट्स, कराची पाकिस्तान। एक चीज यहाँ पे छपी हुई है, पाकिस्तानी मेडिकल स्टूडेंट। देखो, ये आपका इंडेक्स्ड आर्टिकल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में ये आर्टिकल आया हुआ है। आई डोंट नो इफ यू सीन दिस आर्टिकल, क्योंकि आपके रेफरेंसेस में मैंने नहीं देखा ये। बट स्लीप डिस्टर्बेंसेस अमंग अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ठीक है, ये पता नहीं, वो चंचल आजाद जो है, माशाल्लाह कमाल किया है इन्होंने, ये मलेशिया से हैं। सो इसमें पाकिस्तानियों का भी जिक्र है, बट दिस इज अ स्टडी जो जरूर आपके पास, ये स्टडी तो आपने पढ़ी भी हो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल आपके टॉपिक जैसी है। एंड इट इज अ ग्लोबल स्टडी, मतलब कि ठहरो, इसको भी मैं यहाँ पे आपके लिए पेस्ट कर देती हूँ।
आपके रेफरेंसेस में मैं ये पेस्ट कर रही हूँ। अच्छा जी, आई होप यू ऑल कैन सी मी, आई होप यस यू कैन सी मी। अच्छा, सो ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव है जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स की कहानियां लिखी हुई हैं, और वो सोते नहीं है और वगैरह वगैरह, जो सबको पता है, लेकिन इट्स अ गुड रिसर्च जो इन्होंने की भी होती है। और इसमें यू कैन इवन फाइंड आर्टिकल्स अबाउट पाकिस्तान, इसके रेफरेंसेस में आप कर सकते हो, ठीक है। फिर वापस जाके देखते हैं, ये अमंग मेडिकल स्टूडेंट ऑफ कराची, रिसर्च गेट पे छपा हुआ है ये आरिफ सुरानी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से इन्होंने लिखा है ये, फिर मेडिकल कॉलेज ऑफ विस्कॉन्सिन में भी चले गए हैं, दोनों जगहों से इन्होंने लिखा हुआ है। स्लीप क्वालिटी अमंग मेडिकल, फुल टेक्स्ट पीडीएफ आपको इसका अवेलेबल है। सो पीडीएफ इज अवेलेबल, और आप रीड फुल टेक्स्ट कर सकते हैं इसको। ये देखो, ये आपके लिए मैंने फुल टेक्स्ट खोल दिया है इसका। ये रहा, इसमें सारे रेफरेंसेस भी लिखे हुए हैं। सो यू नीड टू एब्सोल्युटली, देखो आपको मैं डाउनलोड करके इसका भी भेज ही देती हूँ यार। ओहो, आई डोंट नो, ये मुझे, ये रहा, डाउनलोड हो गया। सो आई एम गोइंग टू सेंड इट इन द ग्रुप, अब ग्रुप में भेज दूंगी अब यहाँ पे, क्योंकि मेरे अपने डाउनलोड्स में ऐड हो गया है ये। सो लेट मी जस्ट गो बैक एंड लेट मी रीशेयर। ठीक है जी। सो ये जहाँ पे, अब आप जहाँ पे आपने पूरा एक बैकग्राउंड बिल्ड कर दिया कि हम मेडिकल स्टूडेंट्स होते नहीं हैं, उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, वो उदास होते हैं, जो भी उनको मसला होता है। एंड देन जो है, तो कितनी कितनी रिसर्चेस हुई हैं। अभी मैंने आपको ग्लोबल रिसर्च का लिंक भी एक भेज दिया, पूरी दुनिया में भी ये इस इशू पे रिसर्च होती है। फिर ये कि पाकिस्तान में कौन सी कौन सी रिसर्च हुई है, वो आर्टिकल मैं आपको भेज दूंगी। उसमें लाहौर के मेडिकल स्टूडेंट भी हैं, कराची के भी हैं। सो यू ऑल्सो हैव अ रेफरेंस फॉर लोकल रिसर्च जो पाकिस्तान में हुई भी है। फिर आपने अपना एम देना है कि आई नो आई वांट टू स्टडी, एक डिफरेंट एंगल से मैं इसको स्टडी कर रही हूँ, और मैं फर्स्ट और फाइनल ईयर के लोगों को कंपेयर कर रही हूँ और जेंडर्स को कंपेयर कर रही हूँ। ये आपने इंट्रोडक्शन में लिखना है, आप अपने इंट्रोडक्शन में ये रैशनल बिल्ड कर रहे हो। ठीक है जी, समझ आ गई है आपको? So if anybody has any questions, I'm right here. We have time. I think we have a good maybe 20 minutes. So you can ask your questions. I'm right here. And I just want to see at the end of the thing ke kitne log end of the session present hai. Okay ji. So any questions? I'm right here. I'm listening. क्या अब असाइनमेंट आज ही रिव्यू होगी या नेक्स्ट सेशन में? Okay, so the assignments that you had already sent, देखो, if you go back and check, जो आपको प्लेजरिज्म चेकर पे आपने रिसर्च आर्टिकल चेक करने के बाद रिसर्च ऑथेंटिक बन जाता है कि नहीं? No, not necessarily. Plagiarism checker is not the only checker, but plagiarism checker is one checker. Okay, assignment जो आपकी है ना, वो whatever assignments I have, I've already reviewed them. और जिसका फीडबैक मैंने नहीं भेजा वो मैं आज ही भेज दूंगी। नेक्स्ट असाइनमेंट आपकी ड्यू होगी नेक्स्ट मंडे को, क्योंकि आज मंडे है ना। आज हम अपना सेशन कर लेंगे, ये सेशन हो गया हमारा। फिर हमारा वेंसडे को सेशन है। वेंसडे के बाद उसमें मैं आपको होमवर्क दूंगी, और उसके बाद फिर मैं मंडे को वो आपके साथ रिव्यू करूंगी, ठीक है जी? I sent you a question in my email when I submitted, didn't get a response to that. Submitted my, बच्चे यही क्वेश्चन लिख के भेज दो, क्योंकि अब सारी ईमेल में I put them in a similar folder.
So send me your question here, I'll answer it. Right? Ah, mixed methods wala. Thank you so much for reminding. We are covering quantitative, qualitative research is not in the domain. What are the chances of publication? If I intend to do a nation-based survey, collected some data from majority of medical universities, and Inspire, would you? Yes. Second हिस्से का तो जवाब yes है. Of course, I will encourage this idea. Of course, Spire will help you do this study. Very good. इसमें कोई issue नहीं है. पहली बात जो आपने पूछी है ना कि mixed methods, बच्चे mixed methods में qualitative रिसर्च होती है. क्वालिटेटिव रिसर्च मुझे करनी आती है, लेकिन आपको पढ़ाना और फिर वो इस तरह सीखना, इस तरह ऑनलाइन सीख लेना इज नॉट पॉसिबल. क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम. आई डोंट वांट टू टेल यू समथिंग, हाँ हाँ कर लो, यू नो, एंड आई विल हेल्प यू. नो, आई डोंट वांट टू कमिट टू समथिंग दैट कैन नॉट बी डन इन दिस टाइम एंड इन दिस टाइमलाइन. इस टाइमलाइन में अगर आप और इस इंटर्नशिप में अगर आप पब्लिकेशन का सोच रहे हो, तो माय एडवाइस है कि आप क्वालिटेटिव या मिक्स मेथड स्टडीज ना करो. इसमें आप क्वांटिटेटिव सिंपल डिस्क्रिप्टिव स्टडीज पे रहो, जो आप इसी में कंप्लीट करके अभी आपका डाटा कलेक्शन वाला हिस्सा शुरू हो जाएगा. यू हैव अ फुल 4, 5, 6 days, I think 5 days maybe, for data collection. So why not use that time and get to a publication rather than मिक्स मेथड में एंटर होना और फिर एक्सपेक्ट करना कि क्योंकि डॉक्टर अफशां करना आता है तो मुझे सिखा देगी. दैट्स नॉट पॉसिबल. इस तरह मैं आपके सामने जैसे बोल रही हूँ ना, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि मैं आपको क्वालिटेटिव रिसर्च करनी सिखा दूं. आई एम बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट. अगर कोई आपको कहे कि मैं आज सिखा दूंगा तो वो झूठ बोल रहा होगा. ऐसा नहीं हो सकता. अच्छा, the term decrease in mineralization limits my ability to continue writing because most papers are related to osteoporosis or osteopenia. Should I specify decreased mineralization as osteopenia? Very good question, Fatma. Yes, yes, I think आप उसको osteopenia कहें और जो osteopenia की definition है scientific, आप वही इस्तेमाल करें. ठीक बात है ये. What is the difference? अच्छा, थैंक्स फॉर आस्किंग बच्चे. क्वांटिटेटिव जो है ना, उसमें हम क्वांटिटीज मेजर कर रहे होते हैं. जब जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि इतना परसेंट ने ये कर दिया, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, व्हाट इज द इंसिडेंस, व्हाट इज द प्रेवलेंस, इतना ये गिन लो, इतने परसेंट ये कर रहे हैं. सो वी आर काउंटिंग द क्वांटिटीज और उसमें डेफिनेट क्वांटिटीज होती हैं. क्वालिटेटिव रिसर्च जो है दैट इज अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिस्पॉन्स. उसमें आप रिस्पॉन्सेज और उस रिस्पॉन्स के पीछे जो उसकी फीलिंग है. जैसे आप चार लोग आपको कहें कि सिर्फ 10%, कोई कोई ऐसे कहे सिर्फ ओनली 10% पीपल हैव दिस, and then somebody says maybe 10% people have this, and then another person says research shows that 10% people have it, and then another person says that I think 10% people have it. सबका जवाब 10% है. अगर आप क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हो तो आप लिख दोगे कि 4 people said 10%. बस आप ये इंफॉर्मेशन दोगे. लेकिन अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो तो आप ये कहोगे कि out of the 4 people who said 10%, one was sure, one quoted research, one was not sure, and one was assuming that it was 10%. So it is not that 10% का जवाब important नहीं है. What is important is उसके पीछे उसका thought process क्या था. So qualitative studies are they're very difficult to analyze. और क्वालिटेटिव जब क्वांटिटेटिव स्टडी आप शुरू करते हो ना, तो आपके पास एक हाइपोथेसिस होती है. आप कहते हो कि मेरे ख्याल में
फीमेल्स में ये चीज ज्यादा होगी कंपेयर टू मेल्स, मेरे ख्याल में ये मेरी हाइपोथेसिस है, फिर मैं उसको प्रूव या डिसप्रूव करती हूँ। क्वालिटेटिव जो है उसमें आपकी हाइपोथेसिस नहीं होती है, आप एक ओपन एंडेड क्वेश्चन से शुरू करते हो और आप उस रिसर्च के बाद एक हाइपोथेसिस बनाते हो कि मेरी रिसर्च से मुझे ये पता चला कि एक्स वाई जी। सो क्वालिटेटिव रिसर्च इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। और इसमें से हमारी बहुत सी साइंस निकलती है, इट्स अ थॉट प्रोसेस, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू। Can you kindly tell about cross-sectional study a little bit? My research study is cross-sectional, as you corrected. Cross-sectional का मतलब है बच्चे you taking a cross-section in time. अभी हम ये बात कर रहे हैं ना, this present time, इसमें अगर कोई ये कहे कि अफशा ये कह रही थी एंड उमर ये सुन रहा था और मैमुना ये कह रही थी और फातिमा ने फिर ये पूछा, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन। ये सब इस लम्हे में हो रहा है। अगर मैं ये कहूं कि अभी मैंने ये कहा, कल सुबह उठ के आपकी क्या फीलिंग होगी, दैट इज प्रोस्पेक्टिव। अगर मैं ये कहूं कि आप किस नींद पूरी नहीं हुई है इसीलिए आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही, रेट्रोस्पेक्टिव, पीछे से एक बात करके मैं उसका इफेक्ट इस लम्हे पे देख रही हूँ। लेकिन अगर सब कुछ इसी लम्हे में हो, इसी टाइम में हो, आज के दिन में हो, आप क्या सोच रहे हैं, आज आप क्या सोच रहे हैं, दैट इज क्रॉस सेक्शनल। व्हाट अबाउट आईआरबी अप्रूवल? बच्चे, आईआरबी अप्रूवल जो है ना वो आपका जिम्मा है। आईआरबी अप्रूवल वहां से ली जाती है जहां पे स्टडी की जा रही हो। स्पायर इज अ मेंटरिंग सर्विस। स्पायर इज लाइक यू हैव हायर्ड मी टू हेल्प यू डू दिस रिसर्च, so I can help you write the IRB approval, but I will not give you the IRB approval. IRB का मतलब है इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। तो जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है उसका कोई फॉर्म होगा, उसका कोई एप्लीकेशन होगा, आप वो भरोगे और वो उनको दोगे कि हम ये स्टडी कर रहे हैं, हमें इसकी इजाजत दें। जो भी आप स्टडी स्पायर के साथ भी करोगे उसके लिए भी आपके पास आईआरबी होनी जरूरी है। ठीक है? एनी अदर क्वेश्चंस? ओके जी। आई यूज गूगल AI ग्रामरली, गुड ऑल्टरनेटिव्स। यस, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके। ऑनलाइन वेब बेस्ड सर्वेज, अगर उसमें पार्टिसिपेंट जो है वो पेशेंट नहीं है, आपके हॉस्पिटल का पेशेंट नहीं है, वो इज अ रैंडम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, देन यू डोंट नीड आईआरबी अप्रूवल। और फिर आप अपने आर्टिकल में अपने इंस्टीट्यूशन का नाम भी नहीं इस्तेमाल कर रहे होगे, आप एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर होगे। ठीक है? एनीथिंग एल्स? वी हैव 4 minutes. Okay जी, I think it's been a very useful session. Thank you very much. Oops, I see another comment. Thank you, ma'am. Most welcome, Shadman. And start sending your assignments in Word, please. अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सी यू ऑन वेंसडे। ठीक है जी? ऑलराइट। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। और अगर हमजा को कोई जानता है तो उसको बता दें कि उसकी गैर हाजिरी लग गई है, द द नॉन स्वात हमजा।